चलो, which schedule guides on preparation of which schedule gives the requirements of preparing balance sheet and profit and loss account? Schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4. Schedule 3. Schedule 3. Schedule 3. Schedule 3. Which section says that director has to present the final accounts before AGM? 129 section 2. 29 subsection 2. Balance sheet is prepared as per part 1, 2, 3, 4. Part 1. Part 1. पार्ट 1. तो मतलब अभी आपको इतना तक समझ में आ गया. यहाँ तक कि अगर कोई भी आइटम आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. आप लोग कर पाओगे ना? यस और नो? Yes, ma'am. चलो, now let us move ahead. Schedule 3. अभी what is this Schedule 3? Schedule 3 of Companies Act provides the manner in which every company registered under the Act shall prepare balance sheet, statement of profit and loss account and notes thereto. The Schedule 3 is applicable for balance sheet, profit and loss account to be prepared for the financial year commencing on or after April 1st, 2011. Earlier it was also known as Schedule 6. पहले क्या था ये? Schedule 6 था. जब 1956 में करते थे ना तो वो Schedule 6 था. अब 2013 में वो Schedule क्या हो गया? 3 हो गया है. तो कब से ये applicable है Schedule 3? From which date this schedule is applicable? जल्दी बताओ. From which date? 1st April 2011. Which date? April 1, 2011. April 1, 2011. April 1. April 1, 2011. Okay. Next. Accounting standards and other requirements of the Act override the requirement of Schedule 3. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि Schedule 3 में अगर कुछ बोला है और accounting standard contradicts Schedule 3, तो what to follow? Requirement of accounting standards and other requirements of the Act override the requirement of Schedule 3. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि suppose if accounting standard says something on preparation of final accounts or relating to disclosure of any item, then accounting standard will be followed rather than Schedule 3. Means Schedule 3 secondary है. किसी चीज के बारे में अगर AS बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में AS2 बोलता है, आप सबको पता है. AS2 talks about valuation of inventory. तो then in that case Schedule 3 should not be applied. फिर क्या अप्लाई होना चाहिए? AS2. How to charge depreciation इसके बारे में AS6 बोलता है. तो then AS6 will be followed rather than Schedule 3. AS9 talks about revenue recognition. So AS9 follow होगा rather than Schedule 3. Is that clear? So जहां जहां AS है, accounting standard है, वहां पे हम क्या करेंगे? AS follow करेंगे. और अगर AS नहीं है तो Schedule 3 follow होगा. तो who is supreme? AS is supreme और Schedule 3 is supreme. AS. Yes. समझ में आया आप लोगों को? वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना है, that is compulsory. The format of statement of profit and loss account does not mention any appropriation items on its face. Appropriations are to be presented under reserves and surplus in the balance sheet. Now this is very important. Normally क्या होता है ना, अभी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, हम लोग क्या इफेक्ट बताते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं प्रपोज डिविडेंड. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, any appropriation need not be shown in profit and loss account. कोई भी appropriation का मतलब होता है किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया, डिविडेंड पे किया, इस तरह का कोई भी आइटम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना है. उसका इम्पैक्ट कहाँ होगा?
बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में डायरेक्टली आप क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे और उसका इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। मींस पहले का जो पीएनएल था, जो शेड्यूल 6 था, उसमें अप्रोप्रिएशन था। पार्ट 2 of schedule 6 earlier in companies act 1956 had a provision of appropriation in profit and loss account itself, but 2013 does not give any provision for appropriation in profit and loss account. It has to be adjusted in reserves and surplus which is in balance sheet. कहाँ adjust करना है आपको? reserve and surplus में adjust करना है जो balance sheet में। is that clear? समझ में आया आपको? यस मैम। आप लोगों को मालूम है, आप लोग 11th-12th में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को भी जो भी देना है वो कहाँ से देते थे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, करेक्ट। लेकिन अभी 2013 से ये हो गया है कि आपको पीएनएल में वो दिखाना ही नहीं है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन आपको कहाँ दिखाना है? आपको अप्रोप्रिएशन दिखाना है you have to show appropriation, whatever appropriation is there, that has to be shown in reserve and surplus. मैम एप्रिसिएशन ये बैलेंस शीट में भी दिखाते ना? बैलेंस शीट में हम लोग उसका सेकेंड इफेक्ट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड क्या होगा? पीएनएल में से माइनस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल आता है, तो पीएनएल में से माइनस करेंगे और प्रपोज डिविडेंड को हम बैलेंस शीट करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। ये पता है ना आप लोगों को? प्रपोज डिविडेंड करंट लाइबिलिटी में आता है। yes. ट्रांसफर टू रिजर्व, सपोज पीएनएल में से बोला कि एक्सपोर्ट रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर करो, तो पीएनएल में से माइनस करेंगे और वही रिजर्व एंड सरप्लस में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है उधर दिखाएंगे। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन ओवर हियर। ये रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने कैपिटल रिजर्व लिखा पहले। कैपिटल रिजर्व इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन कि कैसे होता है 10,000। फिर यहाँ पे आया एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के नीचे यहाँ पे आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको is 20,000, add profit for the year, ठीक है। तो टोटल हो गया यहाँ पे 30,000, ठीक है। ये टोटल पीएनएल में बैलेंस है 30,000। अब आपको बोला है कि ये 30,000 में से 10,000 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे क्या करोगे? आप लिखोगे लेस ट्रांसफर टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 10,000। अभी बैलेंस कितना बचा? 30 हो गया था, 30 में से 10,000 एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो ये बैलेंस हो गया 20,000, ठीक है। ये एक इफेक्ट हुआ एडजस्टमेंट का। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में ऐड करना पड़ेगा, ऐड ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल। कितना ट्रांसफर किया? 10,000, तो ये आउटर कॉलम में गया 20,000। समझ में आया आपको कि किस तरह से करते हैं? सारे एडजस्टमेंट हम यहीं पे दिखाएंगे। सपोज अभी प्रपोज डिविडेंड भी होता, अगर प्रपोज डिविडेंड होता लेस
प्रपोज डिविडेंड है 5000। तो ये बैलेंस कितना बचता? दैट इज योर रिटेन अर्निंग। ये बैलेंस बचता 15,000, करेक्ट। अभी लास्ट सपोज ये यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस। चलिए ये जाएगा प्रोविजंस में। प्रोविजंस में आपने लिखाया प्रपोज डिविडेंड 5000। समझ में आया? इज इट क्लियर यस मैम। एवरीवन हाउ इट वर्क्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम रिपीट करो ना वापस। क्या रिपीट करो, बोलो कहाँ से स्टार्ट करूँ? देखो ये आपका एक शेड नोट टू अकाउंट्स है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व था 10,000, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व था 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 20,000। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये अमाउंट आया पीएनएल में से। ये कहाँ से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने वर्टिकल बनाया ना उसमें से आया, तो आपने ये पीएनएल में ऐड किया। आपको पहली एडजस्टमेंट है या फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ट्रांसफर टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। नॉर्मली हम क्या करते थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं उसी में दिखाते थे, बट अब उसमें नहीं दिखाना है। दीज आर ऑल एप्रोप्रिएशन, मीन्स यूज ऑफ प्रॉफिट। जो फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसको यूटिलाइज कर रहे हो। किसको दे रहे हो? या तो उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो या तो उसको ओनर्स को दे रहे हो। तो उसको कैसे करोगे? तो कैसे करेंगे हम? ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 10,000, टोटल आया 30,000। मैंने अभी मुझे 10,000 ट्रांसफर करना है ये प्रॉफिट में से, तो मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, मैं ना थोड़ा स्पेस देने की कोशिश करती हूँ सो दैट आप लोगों को समझेगा। अभी आप लोगों को थोड़ा क्लियरली दिख रहा है क्या? अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मैंने लेस किया ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000। अभी एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में मैंने 10,000 ट्रांसफर किया, तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए अफरोज? इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से तो मैंने माइनस कर दिया 10,000। करंट लायबिलिटी में ना मैम? काहे के लिए? आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो हाँ यहाँ पे ही है ना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जो पहले 10,000 था, अभी बोले उसमें और 10,000 डालो, तो इसी में ऐड करोगे ना। हाँ एड एक्सपोर्ट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो मैंने लिखा है ना ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशंस। मतलब आपने ये साल इतना एडिशन किया ये रिजर्व में, 10,000 ऐड कर दिया, अभी ये हो गया 20,000। इफेक्ट टैली हुआ, यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ पे प्लस हुआ, डबल इफेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस नो? मैम। यस मैम। अभी बोला प्रपोज डिविडेंड 5,000, आपको सेकेंड एडजस्टमेंट दी गई थी कि डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड इज 5,000। अभी प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दोगे, तो प्रॉफिट में से मैंने माइनस किया डिविडेंड 5,000। अभी ये डिविडेंड जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, इट इज आवर लाइबिलिटी, तो ये करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस में जाएगा। करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस में यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो प्रोविजंस में प्रपोज डिविडेंड 5,000 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? डोंट नो, दिख रहा है क्या? यस मैम दिख रहा है। तो प्रॉफिट में से माइनस करके उसको सेकेंड हेड में कहाँ लेके गई? प्रोविजंस में प्रपोज डिविडेंड 5,000। इज इट क्लियर? हाँ ना, नो रिप्लाई। चैट बॉक्स बंद है क्या आज? चैट बॉक्स वर्क नहीं कर रहा है? यस मैम। कोई नहीं आंसर कर रहा है आज, क्या हो गया? बोर हो गए क्या आप लोग? सो गए? मैम चैट बॉक्स बंद है चैट ना इसलिए। डिसेबल दिखा रहा है मैम। क्यों?
नहीं मैम। अच्छा हाँ, कर हाँ दिया। अभी आया मैम। Now it is open to all. हो गया? Can we move ahead? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. चलो बोलो. Which section? मैं ही भूल गई. Which section? For presenting final accounts before AGM, 129 subsection 2. who can extend the preparation of final accounts up to 18 months? Who can? Registrar. रजिस्ट्रार. कौन दे सकता है एक्सटेंशन? अगर 18 मंथ्स का किसी को साथ में फाइनल अकाउंट बनाना है तो उसका एक्सटेंशन कौन दे सकता है? रजिस्ट्रार. मैक्सिमम मंथ्स जितना फाइनल अकाउंट्स बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार. 15 months. Final accounts से expect maximum number of objectives. Now structure of schedule 3 is as under. Part 1 is general instructions. अभी ये schedule 3 के ये parts हैं. General instructions means क्या? General instruction. Schedule 3 just talks about general instruction. Part 1 is form of balance sheet. कि balance sheet कैसे बननी चाहिए. इसमें ही 3 talks about general instructions for preparation of balance sheet. Form 2 उसमें 4th पार्ट में आता है. पार्ट 2 that is form of statement of profit and loss account, general instruction for preparation of final account and consolidation. अभी consolidation कैसे होता है ना, सपोज अगर मेरे पास 4 कंपनीज है और वो 4 कंपनीज में से 2 सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी कंपनी को कंसोलिडेट करके मुझे मेरे अकाउंट्स में दिखाना है. होल्डिंग कंपनी, आपने सुना है ना होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? Yes. एनी हाँ, राजश्री सेज यस. तो बताओ तो जरा क्या होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी? मतलब वो होल्डिंग कंपनी संभालने के लिए लेते हैं बाहर, उसका इंडिया के बाहर ऑफिस रहता है ना उसका. नहीं नहीं नहीं, वो तो फॉरेन कंपनी हो गया. व्हाट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? जैसे ब्रांचेस होते हैं वैसे सब्सिडरी कंपनीज होती है, और जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सारी सब्सिडरी कंपनीज की हेड होती है. वो नहीं, आप लोग मेजर पॉइंट मिस कर रहे हो. सपोज इफ अ होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो सब्सिडरी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग परचेज कर लेती है. सपोज कशिश आपकी एक कंपनी है और मेरी एक कंपनी है. अगर मैंने आपके 51% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए तो यू बिकम माय सब्सिडरी एंड आई बिकम योर होल्डिंग कंपनी. समझ में आया? Yes, ma'am. Criteria is holding company should hold 51% or more than the shareholding of the subsidiary company. कशिश की कंपनी की अगर मेरे पास 51% शेयर होल्डिंग आ गई तो आई बिकम द होल्डिंग कंपनी एंड शी बिकम्स माय सब्सिडरी. तो कंसोलिडेशन में क्या होता है ना, ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स भी अपने अकाउंट्स में मर्ज करके दिखाती है. मैं ना कल आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसे बनता है. एक्चुअली ना टुडे देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम एक्चुअली कॉलेज में. मेरा ना लैपटॉप कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई है, नहीं तो मैं आज ही आपको दिखाती थी. इंटरनेट चल ही नहीं रहा है शायद, आई डोंट नो. इसके लिए मैंने आज पीसी से स्टार्ट किया लेक्चर. टुमारो आई विल शो. ओके ओके, ये कैसे होता है, हाउ कंसोलिडेटेड पार्ट इज शोन. एक आपको एक अच्छी कंपनी की मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगी. ओके फाइन, चलो लेट अस मूव अहेड. चेंज इन डिस्क्लोजर वेल कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स of the act, including accounting standard as applicable, to require any changes in treatment or disclosure regarding addition, amendment, substitution or deletion in head, subhead or changes
inter se in financial statement or statement forming part thereof shall be made and the requirement of schedule 3 stands modified accordingly. आप कुछ changes करते हो अपने statement में. If you make any changes in your statement या in your policies तो उसको आपको disclose करना है. Okay? जितना important है उतना ही explain करने वाले हैं. I'm not going to explain everything. आपको दिया है, बाकी पढ़ते जाना. ये नोट टू अकाउंट्स हम डिटेल में जाएंगे जब हम लोग बैलेंस शीट एंड पीएनएल पढ़ेंगे. तो नॉर्मली ना कंपनी एक्सप्रेसेस इन क्रोर्स और इन लैक्स. जो भी आप ले रहे हो, क्रोर्स में ले रहे हो, थाउजेंड्स में ले रहे हो, लैक्स में ले रहे हो, उसको राउंड अप करके लेते हैं. कैसे लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन कभी भी आप पॉइंट्स में नहीं देखोगे. इट वुड बी ऑलवेज राउंडेड अप. ओके. नॉर्मली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो इट शोज अ कंपैरेटिव फिगर के पिछले साल क्या था वो फिगर और ये साल क्या है. जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो उसमें करंट ईयर के साथ एक प्रीवियस ईयर का कॉलम एडेड होता है सो दैट देयर इज अ कंपैरिजन. इनफैक्ट जब स्टैट्यूटरी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जब ये रिपोर्ट्स फाइल होती है ना तो उसमें भी वो लोग कंपैरिजन दिखाते हैं. देयर ऑल्सो यू हैव टू सी कंपैरिजन. अगर ज्यादा वेरिएशंस दिखता है तो गवर्नमेंट आस्क क्वेरीज के इतना वेरिएशन क्या है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स is one regulatory body which monitors companies. So आपको हमेशा जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी डालने हैं. मेन डिस्क्लोजर क्या है? Now this is your balance sheet. Okay. Name of the company, balance sheet as on figures of the current year, and this is figures of the previous reporting period. Current reporting period मतलब अभी आपका current reporting period is suppose 1920 and previous year का reporting period होगा 1819. तो दोनों का आपको यहाँ पे दिखाना है. So this is your vertical balance sheet. आप लोगों को फॉर्मेट याद है? फॉर्मेट याद है? इसमें पर्टिकुलर्स का कॉलम रहता है, नोट्स, नोट नंबर, मतलब हर आइटम के लिए आपको एक नोट बनाना है. तो वो नोट नंबर कौन सा है वो यहाँ पे डालना है. करंट ईयर का फिगर क्या है और यहाँ पे डालते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का फिगर क्या है. ओके. शेयर कैप, equity and liability. The first part of your balance sheet is equity and liabilities. Equity and liability में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है, रिसीव रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. नाउ व्हाट आर शेयर वारंट्स? शेयर वारंट्स क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट्स? क्या हो गया? आप लोग म्यूट पे हो क्या? शेयर वारंट्स क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट्स? शेयर्स एक सर्टिफिकेट मतलब होते हैं जो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको शेयर अलॉट करने के लिए दिए होते हैं. मतलब शेयर वारंट्स आर शेयर सर्टिफिकेट्स विदाउट द नेम ऑफ द शेयर होल्डर. देखो ये किधर से कॉपी किया? आफरीन, आफरीन कैन यू एक्सप्लेन इट? Basically, share companies normally issue share certificate. Share certificate is a registered document, whereas share warrant is an unregistered document. Unregistered document means अगर जैसे अगर आपके पास है तो आपका है, किसी और के पास है तो किसी और का है. Are you getting it? Share warrants means
यहाँ पे you don't have a registered shareholder. Warrant is also a certificate of holding, but it does not contains the name. वो 1 रुपये के जैसा है. 500 रुपए का नोट मेरे पास था, कल कशिश के पास चला गया वो नोट, कशिश को मिल गया तो वो कशिश का हो गया, क्योंकि उसमें मेरा नाम नहीं है ना. One who holds that share warrant becomes the owner of the shares. Is that clear? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दिस इज सेकेंड हेड. अगर कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी कलेक्ट किया है और शेयर्स इशू नहीं किए तो उसको सेपरेटली दिखाना है. नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आता है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं. करंट लाइबिलिटीज में यू हैव current liabilities में you have short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions. ये फॉर्मेट कल तक याद चाहिए मुझे. एसेट्स में 2 पार्ट है, एक है नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट्स है. नॉन करंट एसेट्स का पहला पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम लिखते हैं टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल WIP, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट जो डेवलपमेंट में है. Then you have non-current investment, deferred tax asset,